Hi friends, in today's session we'll start with this hydrogen peroxide. This is last topic of our chapter number 9 and then this chapter is done. So in this chapter we'll discuss about H2O water and second most important part, that is hydrogen peroxide. Now hydrogen peroxide is an important chemical used into this pollution control treatment of this domestic and this industrial effluents. Industrial effluents is all about जो waste water होता है, that is entitled as industrial effluents. Now how can we prepare H2O2? Many times this question asked. One laboratory preparation देखेंगे, one industry preparation देखेंगे. It is prepared by acidifying barium peroxide and removing excess amount of water by the evaporation under the reduced pressure. So that is barium oxide, BaO2. .8H2O. When treated with H2SO4, you get BaSO4 and H2O2. This is one of the byproduct, or this is the major product. BaSO4 is solid form, this is water, and you can get your H2O2. That is laboratory small scale preparation. As per industry is concerned, industrially it is prepared by auto oxidation of 2-alkyl anthraquinols. 2-anthraquinols, aerial oxidation. In the presence of H2NPD catalysis, you get H2O2 and then removal of oxides product. Means ये जो 2-ethyl anthraquinol, क्विनॉल में से जो क्विनॉन बना होगा वो सारी की सारी आपकी बाय प्रोडक्ट होगी and H2O2 is your major product. So this is all about your two preparation. One is laboratory preparation, another is industrial preparation. Next we move on to the structure. Many a time this question asks, discuss the structure of H2O2 with water. So हमने आगे water का example पढ़ा. Water is nothing but OH. Angle is 104-5 minutes and two non-bonding pair of electron available. So this is the structure of water. While in case of H2O2 के केस के अंदर देखिए, this is your oxygen, this is your oxygen, this is your hydrogen and hydrogen. This is in gas phase, this is in solid phase. अब गैस फेज एंड सॉलिड फेज में डिफरेंस क्या है? जो एंगल है, एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 101.5 डिग्री यहाँ पे और दूसरा 90.2. सो गैस फेज के अंदर जो HOH का एंगल है वो है 111.5, वाइल इन केस ऑफ सॉलिड फेज के अंदर जो एंगल है वो 90.2 है. ये दो एंगल आपको याद रखने हैं और यही एंगल आपको H2O के साथ कंपेयर करना है. H2O is 104-5 minutes. So hydrogen peroxide has a non-planar, basically this above the plane, this below the plane, तो non-planar structure है. The molecular dimension in gaseous phase and solid phase are as shown in figure. दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे. बॉन्ड लेंथ याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बट बॉन्ड एंगल दिखाना कंपलसरी है, दैट इज 111.5 एंड 90.2. सो H2O2 स्ट्रक्चर in gas phase, dihedral angle, this is called dihedral angle, is 111.5. Fine in case of gas. H2O2 structure in solid, this is in solid, we have dihedral angle is 90.2. तो ये दो पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है और स्ट्रक्चर के साथ ड्रॉ करना है. तो 2 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 और डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो वाटर का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए. Next is all about your physical property. Now hydrogen peroxide is really very dangerous liquid. It exists in all the three phases, solid, liquid and gas, but generally in chemistry laboratory it is available in liquid form. 3% आपको chemistry lab में H2O2 का only 3% available होता है, but 3% H2O2 अगर हाथ में गिर जाए तो स्किन के फर्स्ट या सेकेंड लेयर बर्न हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा कोरोसिव भी है, बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव है, तो ध्यान रखिएगा, स्टे अवे फ्रॉम H2O2. सो इन द प्योर स्टेट ऑफ H2O2 इज ऑलमोस्ट कलरलेस, वेरी पेल ब्लू लिक्विड. H2O2 is miscible with water in all the proportion and form a hydrate, that is H2O2.H2O. A 30% solution of H2O2 marketed as 100 volume means 30% जो solution है, 30% solution का मतलब 30 ml H2O2 remaining is water, वो मार्केट में उसको 100% मीन्स 100 वॉल्यूम बोला जाता है. इट मीन्स
1 milliliter of 30% H2O2 solution will have 100 ml of oxygen at STP. Commercially marketed sample is 10 volume, which means that the sample contain only 3% H2O2 and mark my word student 3% भी बहुत ज़्यादा dangerous है, तो stay away from H2O2. So this is all about your physical properties. Now chemical properties इज ऑल अबाउट, अभी हमने रिसेंटली रेडॉक्स कंप्लीट किया हुआ है, तो ये रेडॉक्स के अंदर यूज होता है जस्ट बिकॉज H2O2 पैरोक्साइड है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम में आता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट में भी काम आता है। ये दोनों कंडीशन में वर्क करता है, एसिडिक कंडीशन में भी वर्क करता है, अल्कलाइन कंडीशन में भी वर्क करता है। तो ये इक्वेशन 4 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं, डिस्कस H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट, बट आपको दोनों के दोनों मीडियम मेंशन करने पड़ेंगे, एसिडिक एज वेल एज अल्कली। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, सो बेसिकली 2Fe+2, एसिडिक मीडियम मीन्स 2H प्लस H2O2, तो बेसिकली क्या करता है ऑक्सीडेशन, किसका करेगा, देखिए Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, इन द प्रेजेंस ऑफ होम H2O2, तो अगर Fe+2 के सॉल्यूशन के अंदर हम H2O2 डालेंगे तो Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड इट्स टर्न टू Fe+3, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्सीडेशन एक्शन इन एसिडिक मीडिया। Another example, here in case we have a PbS plus H2O2, you get PbSO4 plus 4H2O. Here in case Pb plus 2, just because sulfur minus 2, and here in case Pb plus 4, just because SO4 के लिए यहाँ पे plus 4, तो Pb plus 2 से plus 4 हो रहा है। Here in case also oxidation takes place. Next is reducing action in acidic medium, means यहाँ पे reduction होगा, reduction means oxidation number कम होगा। देखिए Mn का कितना होगा, 2MnO4 minus, obviously it is 4, 2MnO4 minus plus 6H plus 5H2O2, it's H2O2 gives 2Mn plus 2, तो ये Mn कितना होगा +7, यहाँ पे Mn कितना हो रहा है +2, +7 से +2 that is decreases, रिडक्शन हो रहा है। लाइकवाइज अनदर एग्जांपल भी यहाँ पे कोट किया है, यहाँ से दूसरा एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है, that is HOCl plus H2O2 gives H3O plus plus Cl minus। सभी के मिनिमम एक रिएक्शंस याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन फिर से बट इन बेसिक मीडिया, वही सेम एग्जांपल 2Fe+2 plus H2O2 gives 2Fe+3 plus 2OH minus। हियर इन केस H प्लस था, यहाँ पे OH माइनस, तो ये बेसिक मीडियम हो गया, ये एसिडिक मीडियम हो गया। Mn+2 plus H2O2, once again ऑक्सीडेशन, सामने क्या हो रहा है Mn+4, Mn+2 से Mn+4 2OH minus, that is basic medium। So here in case ऑक्सीडेशन अगर आप लिखोगे तो एक एसिडिक मीडियम का एग्जांपल लिखना पड़ेगा, एक बेसिक मीडियम का एग्जांपल लिखना पड़ेगा। And last is, sorry, here in case word is not oxidizing, this is reducing। ये हमने ऑक्सीडाइजिंग पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया, ऑक्सीडाइजिंग, दिस इज रिड्यूसिंग इन बेसिक मीडियम। सो हियर इन केस I2 0 से 2 माइनस, पता चल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट प्योरेस्ट फॉर्म, तो 0 यहाँ -2 डिक्रीज हो रहा है, वंस अगेन रिडक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। सेम एग्जांपल MnO4 H2O2, यू गेट MnO2, यहाँ पे क्या होगा +7, यहाँ पे कितना होगा +4, +7 से +4 डिक्रीजेस, वंस अगेन रिडक्शन हो रहा है। सो सभी के एक एक एग्जांपल याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, देन रिड्यूसिंग रिएजेंट एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, 4 मार्क में पूछेंगे, ईच इक्वेशन हैविंग 1 मार्क। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट स्टोरेज। H2O2 को स्टोर करना भी बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, यू कैन नॉट पुट H2O2 इन एनीवेयर। सबसे पहली चीज H2O2 को खुला भी नहीं छोड़ सकते जस्ट बिकॉज वो डीकम्पोज हो जाएगा और पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ देखिए, H2O2 कन्वर्ट इनटू H2NO2। सो H2O की मार्केट अवेलेबल जो बॉटल है वो भी छोटी क्वांटिटी में मिलेगी। यू डोंट फाइंड H2O2 एज अ 500 ml और 1 liter बॉटल, you always find this bottle as a 50 ml और maximum 100 ml। so एक बार प्रैक्टिकल में यूज कर लिया देन फेंक दीजिए, 2-3 दिन तक ही चलेगा, उसके बाद ये यूज नहीं होगा।
सेकेंड, वी कैन नॉट पुट इट इनटू दिस एनी बॉटल, मीन्स ग्लास बॉटल में तो रख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो ग्लास के अंदर सिलिकन सोडियम सिलिकेट के साथ भी रिएक्शन करता है एंड फिर ब्लास्ट करने लगता है, तो उसके लिए पॉलीमरेट वैक्स लाइन मटेरियल यूज करना पड़ेगा, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेड मटेरियल जिसके अंदर ही आप H2O2 फिल कर सकते हो। सो H2O2 decomposes slowly on the exposure to this light, that is 2H2O2 gives 2H2O plus O2. In the presence of metal surfaces or the trace of alkali present into this glass container, the above reaction is catalyzed. It is therefore stored into this wax-lined glass material or plastic vessel. Wax-lined glass material मतलब क्या होगा? ग्लास के अंदर एक टिपिकल वैक्स का इनर पूरा सरफेस कवर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इज वैक्स-लाइंड ग्लास, और स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लास्टिक पॉलीमरिक मटेरियल होता है, और उसको भी कहाँ पे रखना पड़ता है? डार्क में। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट लाइट की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा पानी एंड ऑक्सीजन को छोड़ देगा। So due to this reason it is really very difficult to the storage issue is really very high. यूरिया कैन बी एडेड एज अ स्टेबिलाईजर, मीन्स उसको स्टेबिलाईज करने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा पिंच ऑफ यूरिया डाला जाता है, तो H2O2 का जो डीकम्पोजिशन रेट है वो बहुत ही कम हो जाता है। इट इज केप्ट अवे फ्रॉम द डस्ट because dust can induce the explosive and decomposition of this component. So इसीलिए dust की भी absence होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। So आप समझ सकते हो it is really very difficult to preserve this H2O2. तो storage issue of H2O2 is really very high. Last, uses. सर इतने सारे negative point बताए, कहीं पे use होता है कि नहीं होता है? Yes, it is used as a bleaching action. It is used into this pulp industry. इट इज यूज इनटू दिस लेदर इंडस्ट्री, सॉफ्टनिंग करने के लिए यूज होता है। डाइंग पर्पस के अंदर भी H2O2 एज ए ब्लीच के रूप में यूज होता है, और बहुत सारी जगह पे जैसे टेक्सटाइल पेपर के अंदर भी ब्लीचिंग मैंने बताया उसके अंदर भी यूज होता है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इन डेली लाइफ यूज एज अ हेयर ब्लीच एंड एज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। हेयर ब्लीच का अंदर मैनी टाइम यू सीन दिस एड इनटू दिस टेलीविजन स्क्रीन, नो अमोनिया नो पेरोक्साइड। So ammonia and peroxide basically used for hair bleach. जो भी लोग हेयर कलर करते हैं तो सबसे पहले ब्लीच किया जाता है, जैसे जो ओरिजिनल कलर है वो चला जाता है, एंड देन यू अप्लाई दिस कलर, तो वो कलर हो जाता है। माइल्ड डिसइंफेक्टेंट मीन्स वाटर डिसइंफेक्टेंट के अंदर भी पेरोक्साइड यूज होता है। एज एंटीसेप्टिक इट इज सोल्ड इनटू दिस मार्केट एज अ परहाइड्रल। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर केमिकल लाइक सोडियम परबोरेट, percarbonate, which are used into this high quality of detergents. मीन्स डिटर्जेंट के अंदर जो यूज होता है उसकी प्रिपरेशन के अंदर यूज होता है, डिटर्जेंट प्रिपरेशन के अंदर नहीं होता है, बट डिटर्जेंट के अंदर सोडियम परबोरेट एंड परकार्बोनेट होता है हाई क्वालिटी ऑफ डिटर्जेंट के अंदर। वो बनाने के लिए वन ऑफ दिस केमिकल इज H2O2. इट इज यूज इनटू द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, टार्टरिक एसिड एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स, मीन्स फूड ग्रेड क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं जो स्पेसिफिक फूड इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये यूज होता है। इट इज यूज इनटू दिस फार्मास्यूटिकल्स आल्सो, मींस फार्मा के अंदर कुछ प्रोडक्शन मींस मेडिसिन के प्रीकर्सर इंटरमीडिएट स्टेप बनाने के लिए भी यूज होता है। इट इज एम्प्लॉयड इनटू दिस इंडस्ट्री एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल, पेपर पल्प, लेदर, ऑयल एंड फैट। ये सारी की सारी इंडस्ट्री के अंदर जो ब्लीच करना पड़ता है, आप सभी ने शायद पेपर इंडस्ट्री के लिए पल्प देखा होगा, वो ब्राउन या पेल येलो कलर का होता है, उसको ब्लीच करने के बाद व्हाइट बनाया जाता है। एंड लास्ट, इट इज ऑल्सो यूज इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। सबसे पहले बताया इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पेरोक्साइड। इतना छोटा सा था पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड के अंदर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ सॉल्ट एग्जाम्पल नंबर 9.5। कई स्कूल के अंदर ये स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज करके नया न्यूमेरिकल बना देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब कोई स्कूल 10 की जगह पे 15 कर देगा, कोई 20 कर देगा, तो आंसर थोड़ा सा वेरी होगा। मेथड बहुत ईजी है। 10 volume solution of H2O2 means that 1 liter of H2O2 solution gives 10 liter of oxygen at STP. STP का मतलब होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
So H2O2 gives O2 plus H2O. This is a standard equation, chemical equation. यहाँ पे H2O2 होगा 34 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 2. दिस इज नॉट 234, दिस इज 2 into 34, that is 68 gram. At STP, any gas having volume is 22.7 liter. So अगर मेरे पास 68 ग्राम H2O2 है, which will give me 22.7 liter of O2. So on the basis of above equation, 22.7 liter of O2 is produced when 68 gram of H2O2. But मेरे पास तो कितना है 10 वॉल्यूम और 10 लीटर. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यू गेट योर आंसर 68 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 22.7, यू गेट 29.9, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम ऑफ H2O2 होगा. Therefore the strength of H2O2 in 10 volume of H2O2 is 30 ग्राम पर लीटर, मीन्स 3% हो गया. अब मान लीजिए इंस्टेड ऑफ 10 की जगह पे कई स्कूल यहाँ पे 15 कर देंगे या फिर 20 कर देंगे, तो न्यूमेरिकल में कहाँ डिफरेंस आएगा वो समझ लीजिए. यहाँ पे तो सेम रहेगा, सेम. अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा 10 लीटर की जगह पे, तो आपको क्या करना है 68 मल्टीप्लाई बाय, अगर 15 पूछा तो 15 या 20 पूछा तो 20 डिवाइडेड बाय 22.7 और आपका आंसर जो भी आए वो लिख लेना आप. मीन्स अगर 15 पूछा तो 68 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 22.7 या फिर 20 वॉल्यूम पूछा तो ऑब्वियसली डबल हो जाएगा, दैट इज यू गेट 60 ग्राम. फाइन. और दिस इज ऑल अबाउट योर 9.5 न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल के अंदर कुछ नहीं है, इट इज नॉट लुक लाइक ए न्यूमेरिकल, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बट 1 मार्कर या 2 मार्कर में पूछे तो आपको आना चाहिए. एक लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज हैवी वाटर, दैट इज D2O. Normal water is H2O. Why it is known as heavy water? Just because it's an isotope of hydrogen. In this beginning we'll start with this hydrogen, deuterium and tritium. Fine. So D2O called is heavy water. अब D2O का यूज है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, इसीलिए ये छोटा सा टॉपिक लिया हुआ है. इट इज यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर and in exchange reaction. For the study of this reaction mechanism, it can be prepared by executive electrolysis of water or a byproduct of some fertilizer industries. It is used for the preparation of other deuterated salts also. So CaC2 plus 2 D2O में सिंपल हाइड्रोलिसिस है. ये हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या था, H प्लस प्लस OH माइनस. अब यहाँ पे क्या होगा, इट्स अ D2O, तो D प्लस प्लस OD माइनस. देखिए कैल्शियम यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस DNOD होगा, तो CaOD ट्वाइस, और जो बचा D वो कार्बन के साथ चला गया C2D2. नेक्स्ट SO3 प्लस D2O, वंस अगेन SO3 is converted into D2O, you get D2SO4. H2O होता तो क्या बनता है SO3 प्लस H2, H2SO4. इंस्टेड ऑफ H2SO4 D2SO4 बन गया. एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस D2O, सो दिस इज CD4, वहां पे CH4 बनता, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे एल्यूमिनियम ड्यूट्रोक्साइड बन जाएगा ALOD थ्राइस. सो दिस इज ऑल अबाउट योर हैवी वाटर. 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत सारे स्कूलों में पूछा गया हुआ है. यूज ऑफ हैवी वाटर, इट इज यूज एज ए मॉडरेटर. मॉडरेटर का मतलब क्या होगा, रिएक्शन को स्लो करने के लिए. अब सभी को पता है न्यूक्लियर रिएक्शंस आर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन. वंस इट स्टार्ट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू स्लो डाउन. तो स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर का काम करता है ये D2O, और भी बहुत सारी चीज यूज होती है टू स्लो डाउन दिस प्रोडक्ट, बट दिस इज वन ऑफ द कंपोजिशन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 9 हाइड्रोजन. थैंक यू.